Good afternoon, friends. As we know, the first stage forecast for the southwest monsoon season, that is June to September, rainfall was issued in April by the India Meteorological Department, the IMD. Today, IMD will issue the second stage long-range forecast for southwest monsoon season, June to September rainfall. For this, I welcome Secretary, Ministry of Earth Sciences, Dr. M. Rajivan, and Director General IMD, Dr. M. Mohapatra. Over to Dr. Rajivan. So good afternoon, all of you. We have three important announcements to make. One is the second stage monsoon forecast. As all of you know that we have a two-stage monsoon forecasting system. First forecast is issued sometime in April and around 15th of April. And the second stage, the update forecast and also the forecast for homogeneous regions we issue last week of May or first week of June. So we have another low pressure system is existing now over Arabian Sea. So Dr. Mohapatra DGM will describe the details about the depression which has formed over Arabian Sea. And also the monsoon onset has come over Kerala. So we will briefly mention about the details about monsoon onset also. So first I will describe the details about the second stage monsoon forecast. As you may be remembering that in April we gave a forecast for normal monsoon forecast, and quantitatively it was 100% of long period average. And now based on the statistical model as well as the dynamical models, we have come up with the update forecast for the country as a whole as well as for 4 homogeneous regions, June to September, and also for separately for month-wise rainfall for July and August. So I want to, at that time also I told that we have a good news that we are expecting a normal monsoon this year. So now also I would like to say that we have a good news that we will have a good monsoon this year, normal monsoon this year. And as per the statistical model forecast, quantitatively the monsoon rainfall will be 102%. That means 2% more than what we expected in April. So the conditions are becoming more favorable for a good monsoon. So with quantitatively the monsoon rainfall June to September over the country as a whole will be 102% of its long period average. Long period average means 88 centimeter if you take the long-term data. And for region-wise, 107% over Northwest India, it's a good number, and 103% over Central India, 102% over South Peninsula, and we are expecting little less than normal over Northeast India. Northeast India has been experiencing low rainfall for last few years, so we are expecting little less rainfall over Northeast India, 96%. So uniformly, we expect a good spatial distribution over the country during this monsoon season. All India will be 102, 107% over Northwest India, 103 over Central India, 102 over South Peninsula, and 96 over Northeast India with a model error of 8%. All India forecast will have an error of plus or minus 4%. And for July rainfall, we expect 103. So July rainfall is very crucial for agriculture, and so we are expecting good monsoon during July. It's 103% of long period average. And August also good monsoon, but little less than normal. It's about 97% during August, again with a little more larger model error of 9 plus or minus 9%. As all of you know that basically the sea surface temperature conditions over Pacific as well as Indian Ocean are mainly responsible for year-to-year variability in addition to natural variability. And at this time, ENSO neutral conditions are prevailing over the Pacific Ocean. And some models are suggesting, including our own climate model, suggesting a kind of a cold ENSO. That means temperature will be below normal, but not as a La Nina. And but some models are very clearly suggesting a weak La Nina conditions by another, especially in the second part of the monsoon season. La Nina is normally associated with the good monsoon over India. And so we are expecting colder ENSO or La Nina conditions, weak La Nina conditions during the ensuing monsoon season, which should really help Indian monsoon to get India to get good monsoon rainfall over the season during June to September.
And probability wise also we would like to mention the probability distribution. As per the probability distribution model, we have probability for normal rainfall is 41. That is the highest probability, 41%. So I will start from division. Division for probability is only 5% division forecast. And that means there is very, very less probability for Indian monsoon to be on deficient side, which is very, very good news. Only 5%. Climatological probability is almost 16, so it is much less than the climatological probability of 16%. Below normal, it is only 15%, again less than climatological probability. Normal is 41, it's a very high probability for normal monsoon. And above normal also is very high, it's 25% probability, and excess 14. So I'll repeat again, deficient 5%, below normal 15%, and normal is 41%, and above normal is 25, and excess is 14%. So distribution is little skewed towards positive side, and more probability for normal, above normal, excess rainfall. This is a good sign, and it's consistent with the quantitative precipitation forecast of 102% for long period average over India. So I will move on to the depression. Of course, Dr. Mohapatra will give you more details. Yesterday, low pressure system formed. Now it has become a deep depression. Sorry, depression over East Central and adjoining Southeast Arabian Sea. It is likely to move, intensify further into deep depression, then also a cyclonic storm, and it will likely to move northwards initially and move recurve northeastwards across North Maharashtra and South Gujarat coast between Harihareshwar, Raigad, and Daman during sometime in 3rd June. And the third news is we are all expecting monsoon to come. So monsoon has arrived over Kerala. We have specific objective conditions. It's not arbitrary conditions, objective conditions. Anybody can cross-check it and make sure that these conditions are met. The results are published in the peer-reviewed research paper, monsoon onset conditions. And so anybody can refer that paper. And it's available in IMD's website. So we have specific conditions to be met for declaring monsoon onset over Kerala. So today we have met that conditions. So we are declaring monsoon onset over Kerala. It's the northern limit of monsoon starts from Kannur, then it starts from Coimbatore. Most of Kerala is covered today by monsoon 2020. So with this, I will request now Dr. Mohapatra to briefly mention about more details about depression as well as, and also you may speak in Hindi. Thank you. नमस्कार। जैसे सेक्रेटरी साहब ने आपको ये सूचित किए हैं कि इस साल हम एक नॉर्मल मानसून एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो हमारा पूर्वानुमान 15 अप्रैल को जारी हुआ था, इसके हिसाब से क्वांटिटेटिवली 100% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज पूर्वानुमान किया गया था, विथ ±5% मॉडल एरर। अभी आज जो पूर्वानुमान हम दे रहे हैं पूरे भारतवर्ष के लिए 1 जून से 30 सितंबर के अंदर होने वाले बारिश का परिमाण 102% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज होने का उम्मीद किया जा रहा है, और ये मॉडल का जो एरर है ±4% है। नॉर्मल रेनफॉल 1 जून से 30 सितंबर के अंदर लगभग 88 सेंटीमीटर होता है, और आज जो पूर्वानुमान है इसके हिसाब से 88 सेंटीमीटर की 102% होने का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप डिफरेंट होमोजेनियस रीजन्स देखेंगे तो भारत मौसम विज्ञान विभाग 4 डिफरेंट होमोजेनियस रीजन्स के लिए पूर्वानुमान देते हैं। इसके हिसाब से इस साल जून से सितंबर के अंदर जो बारिश होने वाला है वो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए 107% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, सेंट्रल इंडिया के लिए 103% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, साउथ पेनिनसुला के लिए 102% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए जैसे कुछ साल हो गया थोड़ा सा बारिश कम हो रहा है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इस साल भी हमारा ये उम्मीद है कि 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। इसका मतलब ये हुआ कि
नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल और पेनिनसुलर इंडिया में 100 से एबव रहने का, नियर नॉर्मल के एबव नॉर्मल रहने का उम्मीद है। मगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हम थोड़ा नॉर्मल रेनफॉल से कम उम्मीद कर रहे, 96% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये सभी मॉडल का एरर है, ±8%। सो इसके साथ साथ हम जुलाई और अगस्त के लिए भी पूर्वानुमान जारी करते हैं। इस साल जुलाई महीना में जो बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है लॉन्ग पीरियड एवरेज की 103%, और अगस्त महीना में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 97% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज। और ये जो मंथली रेनफॉल का जो पूर्वानुमान हम देने के लिए मॉडल यूज करते हैं, इसका एरर है ±9%। आई थिंक नहीं आ रहा है वो। सो ये है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ हम एक प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट भी जारी करते हैं, और ये प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट के हिसाब से जो प्रोबेबिलिटी एसेस किया गया रेनफॉल का जून टू सितंबर, इसमें डेफिशिएंट रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी 5% है, बिलो नॉर्मल रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी 15% है, नॉर्मल रेनफॉल होने का प्रोबेबिलिटी 41% है, एबव नॉर्मल का प्रोबेबिलिटी 25% है, और एक्सेस रेनफॉल का प्रोबेबिलिटी 14% है। सो आप ये सभी आंकड़े को कंपेयर करें, लगता है कि हमारा जो रेनफॉल एक्सपेक्टेड है वो नॉर्मल या एबव नॉर्मल की तरफ इंडिकेशन आ रहे हैं। सो ये जो प्रोबेबिलिस्टिक फोरकास्ट है, हमारा क्वांटिटेटिव फोरकास्ट के साथ एक मत है कि हम इस बार नॉर्मल से ज़्यादा माने 102% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये जो आप लार्ज स्केल फीचर्स हम देखते हैं कि यूजुअली हम जो एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन माने इक्वेटोरियल पैसिफिक ऊपर जो सी सरफेस टेम्परेचर होता है, इसका बहुत सारे भूमिका रहता है मानसून रेनफॉल के साथ। सो जैसे हमने 15 अप्रैल को आप लोगों को बताए थे कि इस बार न्यूट्रल एनसो कंडीशन है, और ऐसे प्रोबेबिलिटी है कि लेटर हाफ ऑफ द सीजन यानी अगस्त सितंबर की तरफ ये वीक लानिना कंडीशन डेवलप हो सकता है। एल नीनो कंडीशन मानसून के लिए अच्छा नहीं होता है, मगर लानिना कंडीशन मानसून के लिए अच्छा है। सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसके लिए हम अच्छा मानसून इस बार उम्मीद कर रहे हैं वो है कि न्यूट्रल एनसो कंडीशन और पॉसिबिलिटी ऑफ वीक लानिना कंडीशन इन द सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन। सिमिलरली आप जो इंडियन ओशन डाइपोल जो कि एल नीनो के काउंटर पार्ट बोल सकते हैं हमारा इंडियन ओशन में, वो अभी न्यूट्रल कंडीशन में है, और हमारी उम्मीद है कि ये न्यूट्रल कंडीशन जारी रहेगा थ्रू आउट द मानसून सीजन। सो ये दोनों लार्ज स्केल फीचर्स को देखते हुए हमारा जो अनुमान है कि रेनफॉल 102% ऑफ एवर नॉर्मल हो सकता है, ±4%। सो ये है अबाउट मानसून। जैसे सेक्रेटरी साहब ने आपको बता रहे थे, आज के दिन में हम और एक प्रेस रिलीज जारी किए हैं, वो है मानसून ऑनसेट ओवर केरला। हम जैसे 4-5 दिन पहले बता रहे थे कि 1 जून से कंडीशंस फेवरेबल होगा, ऐसे ही आज हम देखे हैं कि जितने सारे क्वांटिटेटिव कंडीशंस हम कंसिडर करते हैं मानसून ऑनसेट के लिए, इसके आधार पर आज हम केरला में मानसून का ऑनसेट डिक्लेयर किए हैं। मैं आपको संक्षिप्त में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मानसून जो साउथ वेस्ट विंड का एक आधार है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मानसून डिक्लेयर करने के लिए। हमारा क्राइटेरिया के हिसाब से साउथ वेस्ट विंड केरला तट पर और साउथ अरेबियन सी में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एटलीस्ट 15 to 20 नॉट्स होना चाहिए, और इसका जो वर्टिकल एक्सटेंट है, डेप्थ है, वो एटलीस्ट 4 to 5 किलोमीटर होना चाहिए, जो कि आज ये सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा है कि देयर शुड बी परसिस्टेंट कन्वेक्शन, कन्वेक्टिव क्लाउड्स। आपको ये जानकर खुश होंगे कि हमारा कोस्ट में जो रडार सिस्टम है, जैसे त्रिवेंद्रम रडार है, कोची में रडार है, गोवा में रडार है, ये सभी रडार से प्राप्त आप विंड्स देखेंगे, वो सभी में भी साउथ वेस्टर्ली विंड्स प्रिवेल कर रहा है, स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड्स। और इसके साथ साथ जो कन्वेक्टिव क्लाउड्स डिटेक्ट होता है रडार से, और इसके साथ जो सैटेलाइट से, वो भी दिखाता है कि परसिस्टेंट कन्वेक्टिव क्लाउड्स ओवर साउथ अरेबियन सी, माने साउथ ईस्ट अरेबियन सी और केरला कोस्ट
और इसकी वजह से आप देखेंगे जो पास्ट 2 डेज में जो बारिश हुआ है लगभग वाइड स्प्रेड रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है केरला में। और कल 8:30 IST तक 70% ऑफ द स्टेशंस रिपोर्टेड रेनफॉल मोर देन 2.5 मिलीमीटर्स इन केरला, और जो 14 स्टेशंस को हम कंसिडर करते हैं। और आज मोर देन 80% ऑफ द स्टेशंस रिपोर्टेड रेनफॉल ऑफ 2.5 मिलीमीटर और मोर। सो इसके लिए जो हम क्वांटिटेटिवली 14 स्टेशंस कंसिडर करते हैं केरला और अर्जनिंग एरियाज में, वो इसका स्थिति ऐसा है कि वाइड स्प्रेड रेनफॉल जारी है। और मैं बताना चाहता हूँ कि आज केरला में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड किया गया है पास्ट 24 आवर्स के अंदर। जैसे कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट्स में कोझिकोड 9 सेंटीमीटर और एक स्टेशन में 15 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किए हैं रेनफॉल, और त्रिवेंद्रम भी 6 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड किए हैं। और हमारा उम्मीद है कि ये जो शुरुआत हुआ है मानसून का ऑनसेट के साथ अच्छा ही रहेगा, और इस बार मानसून नॉर्मल रहेगी और क्वांटिटेटिवली 102% ऑफ एबव नॉर्मल रहेगी। और एक वेदर सिस्टम ये ऑनसेट फेज में डेवलप हुआ है जिसको हम मानसून वॉर्टेक्स बोलते हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसे ये डेवलप हुआ, और कल ये एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट एंड एडजॉइनिंग ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में केंद्रीभूत था लक्षद्वीप एरिया के आसपास, और आज ये घनीभूत होकर माने इंटेंसिफिकेशन होकर एक डिप्रेशन में परिणत हो गया है। और ये डिप्रेशन लगभग मुंबई से 690 किलोमीटर दूरी पे साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे आज दोपहर को केंद्रीभूत था। और इसके प्रभाव में अभी जो समुंदर है स्पेशली ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी और साउथ ईस्ट अरेबियन सी बहुत अशांत है, सी कंडीशन रफ टू वेरी रफ है। और हमारा उम्मीद है कि ये जो डिप्रेशन अभी है आज शाम तक या रात तक एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा, और कल ये एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होगा, और धीरे धीरे ये लगभग उत्तर दिशा में कल तक मूवमेंट जारी रखेगा, और इसके बाद इसका दिशा में परिवर्तन होगा और नॉर्थ ईस्ट दिशा में ये गति करेगा। इसका मतलब यही होता है कि 3 जून को ये महाराष्ट्र और एडजॉइनिंग साउथ गुजरात कोस्ट के पास पहुंचेगा और इसको तट को पार करेगा। हमारा ये उम्मीद है कि 3 जून आफ्टरनून के आसपास शायद ये तट को पार करेगा। सो इसके प्रभाव में अभी जो बारिश अभी हो रहा है और तेज़ी से बारिश होगा, सेकेंड से बारिश का परिमाण बढ़ेगा, और 3 को स्पेशली ज़्यादा बारिश होगा महाराष्ट्र का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट से और एडजॉइनिंग मध्य महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट से, स्पेशली सिंधुदुर्ग से शुरू करके सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, थाने, रायगढ़, मुंबई और पालघर, ये सभी में हम हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी मोर देन 20 सेंटीमीटर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पेशली 3 जून पे। और इसके साथ साथ अभी समुद्र में जो विंड स्पीड है वो अभी 45 to 55 kmph गस्टिंग टू 65 kmph चल रहा है डिप्रेशन के साथ, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और कल सुबह ये 60 to 70 km/h होने का उम्मीद हो रहा है जब ये साइक्लोन में परिणत होगा। और ये धीरे धीरे बढ़कर हमारा जो उम्मीद है 90 से 105 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है जब ये तट के पास पार करेगा। यानी ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के हिसाब से तट के पास आने का हमारा उम्मीद है। मगर फिर भी अभी 3 दिन का पहला फोरकास्ट है ये, अभी हम कंटिन्यूसली इसको एसेस कर रहे हैं, और एवरी 3 आवरली और 6 आवरली हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं, आप लोगों को हम अपडेट देंगे। मैं ये आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज जो सभी साइक्लोन मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं सभी को ये इन्फॉर्मेशन जा रहे हैं और सभी भी कोशिश कर रहे हैं सभी स्टेप्स लेने के लिए। और जो फिशरमैन है, मछुआरे हैं, इसको हम स्पेशली एडवाइस दिए हैं और वार्निंग दिए हैं कि समुद्र को 4 तारीख तक न जाए। सो केरला, लक्षद्वीप, कोस्टल कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इस तट के पास जो फिशरमैन है वो सभी अंदर नहीं जाना चाहिए। जो अंदर है सो इमीडिएटली वापस आ जाना चाहिए तट के पास, नहीं तो ये जो डिस्टर्ब एरिया है इसको एवॉइड करें। सो ये जो सिस्टम मानसून के टाइम डेवलप हो रहा है, आपको मैं इसने सूचना देना चाहता हूँ कि मानसूनल सिस्टम में बारिश बहुत ज़्यादा होता है।
सो इसलिए जो लो लाइंग एरिया है जिसमें जो हम हेवी रेनफॉल टू वेरी हेवी रेनफॉल और आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल उम्मीद कर रहे हैं, इसमें इनंडेशन हो सकता है। स्पेशली जो टाउनशिप है कि सिटी एरिया है वहाँ भी बारिश की वजह से इनंडेशन, लो लाइंग एरिया इनंडेशन हो सकता है। और इसके साथ साथ जो विंड स्पीड है उसके हिसाब से कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज जैसे पेड़ को, टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स को भी डैमेज होने का उम्मीद किया जा रहा है। मगर हम डिटेल डैमेज असेसमेंट अभी जारी नहीं किए हैं। जब ये साइक्लोन अलर्ट इशू करेंगे और इसको वार्निंग में परिवर्तन करेंगे और थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ ये स्पष्ट रूप में तट को पार करेगा, तब हम डिस्ट्रिक्ट वाइज और ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इसके साथ जारी करेंगे। धन्यवाद। We have time for a few questions. Yes, 59. Sir, Prashant here from the PTI. Hi. Sir, if you look at the the cyclone track, it starts from Raigad to Daman. So it's a 260-kilometer patch, and you also have an area which has one of the highest densities in the country. So can we expect or rather the monsoon to hit Mumbai or Thane or neighboring areas, sir? With this, say now the system is in depression stage, so therefore the landfall we are given a little larger area, and probably by tomorrow we will get a better idea with the model improving, the forecast improving. So we may be able to reduce the big distance between the landfall area which we are describing. Probably tomorrow we will have a better idea about the landfall. And this will give rain, but it may not be really bringing monsoon rains there. So this may not be a monsoon rains because monsoon rain has have a condition other than only rainfall. So probably this will bring a lot of rain, and also as Dr. Mahapatra was suggesting, it will give some heavy winds and strong winds, etc. But monsoon rains we may have to wait. Yeah, it's quite possible that after the storm moves away, then there could be a lull, and we normally call it a hiatus in the monsoon onset. Yeah. I have a online question. Recently, many research papers say that while monsoon rainfall average may be reached often, the number of rainy days may reduce, and the instances of extreme rainfall episodes will increase. Does the IMD think there is a merit in also trying to forecast extreme rainfall episodes, if any, as part of its long-term forecast stage 2? Well, it's a good question. So we have been also trying it, but at present what we are trying to predict is the mean rainfall, but question is how many days we can expect heavy rainfall or extreme rainfall. We are trying to, it is in research mode, and probably I may not be able to make a commitment that when we can make it operational. So we would like to have a kind of long-range forecast on many other aspects. For example, how many days will be active spell, how many days will be break spells, and how many days we will have number of rainy days, etc. So we are doing in research mode, and probably maybe after a couple of years, probably we may be able to make operational this kind of forecast. 63. सर, एहतिशाम हूँ न्यूज़ 18 से। ये जो साइक्लोन की स्थिति बनी हुई है, ये आगे किस तरह से इसको देखते हैं, कितना खतरा आंक रहे हैं और कब तक ये सबसाइड करने की स्थिति में आ जाएगा? अभी जो हमारा असेसमेंट है ये एक डिप्रेशन है और कल ये एक साइक्लोन में परिणत होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। और जब तट के पास पहुंचेगा, दैट ऑन 3 जून ये तट के पास पहुंचेगा, हम उम्मीद कर रहे हैं, तब ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जिसका विंड स्पीड 90 से 105 किलोमीटर पर आवर होने का पूर्वानुमान है। और ये तट के पास 3rd आफ्टरनून में पार करने का भी हम सूचना दिए हैं, मगर ये अभी 3 दिन का पहले फोरकास्ट है, हम इसको अपडेट कर रहे हैं हर 3 घंटे। मगर फोरकास्ट हमारा कंटिन्यूसली वही है कि ये साइक्लोन होगा और ये महाराष्ट्र और एडजनिंग गुजरात कोस्ट की तरफ जाएगा और 3 तारीख को ये तट को पार करेगा। Any more questions? Anybody else who hasn't asked? Yes, please. Please identify your organization. My name is Nipun Sahgal. I'm from ABP News. ये जो साइक्लोन का आप लोग अंदेशा कर रहे हैं, हालांकि अभी स्पष्टता आएगी ऐसा आप बता रहे हैं, लेकिन इसका ज्यादा प्रभाव जो कुछ भी होगा
वो गुजरात में ज्यादा रहेगा या महाराष्ट्र में ज्यादा रहने की आपको उम्मीद है? अभी हमारा जो पूर्वानुमान है इसके हिसाब से महाराष्ट्र का जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है इसमें इसका ज़्यादा प्रभाव रहने का उम्मीद किया जा रहा है, स्पेशली जो मुंबई, थाने, रायगढ़ और रत्नागिरी एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट्स। Any more? Anybody else? One last question again from PTI, then we'll conclude. So, you mentioned that Northeast will receive 96% of the LPA. But what about East India? Because you have Jharkhand there, Bihar, West Bengal. So, what kind of rainfall are we expecting there, sir? So that is, those states are part of central India, we have told that, sorry, that also part of, especially West Bengal and Jharkhand and all is a part of northeast India. So there also we are expecting less rainfall this year. Okay, thank you, friends. With this, we conclude this press conference. Thank you very much. Thank you.